Hi everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma. So here with this video, we're going to start our preparation for December cycle examination. We have about 5 to 6 months left in our hand to prepare for this. And this is a series I'm going to start where we will learn that how to prepare for this examination. I will share with you topic-wise preparation strategy for each and every single topic and section. For example, in this video, we will learn how to prepare for Indian literature. For Indian literature section, how we will prepare, that what we will learn here. And in the upcoming videos, we will learn for the rest of the units and the topics, right? So what I have done here, that I have taken recently asked questions. लास्ट के 5 to 6 साइकिल्स में जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन लिटरेचर से, आई हैव कलेक्टेड देम, पुट देम हियर इन द स्लाइड्स। इससे हमें एक पैटर्न का पता चलेगा से किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्रिपेयर। इट विल मेक थिंग्स वेरी इजी फॉर यू। थिंग इट विल मेक इजी फॉर यू इज टू व्हाट टू स्टडी, राइट? सो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। सो क्या हमें ये ऑथर पढ़ना है, कि हमें कौन सी राइटिंग पढ़नी है, क्या शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है, क्या पोम्स पढ़नी है, क्या नॉवल पढ़ने हैं, प्लेस पढ़ने हैं, आपके लिए हर एक चीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, right? As a beginner, we face challenges. I don't want you to waste your time in collecting the content. You should have the content in the first place with you. You can just start preparing straight away without beating around the bush. ये टॉपिक पढ़ना है, ये यहाँ से कलेक्ट करना है. My professor note provides you the content, provide you the study material on the finest content in the country, English literature exam. We have given thousands of results. You can go and check on my website, which is myprofessornote.com, right? You will find the results in the review section. Only a few I have loaded there, so you will get an idea from there, right? We provide you this study material, the 6 booklets you will have, and the classes, the mock test, doubt clearing session. The content only will cost you 5,500, right? Most affordable content we are providing. And then these video classes. For 1 year, its cost is 7,960, and for 6 months, it's 3,950. Both of the things you can get at 8,700, right? Most affordable and the best quality content you are getting, right? So start your preparation today itself, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। आपको कंटेंट इकट्ठा करने की बजाय आप अपना वो टाइम जो है उसे पढ़ने में लगाएं। जहाँ पे भी आपको डाउट होता है, कंफ्यूज होता है, वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर यू। यू कैन टेक्स्ट मी on WhatsApp anytime, or you can schedule your call. You just simply have to contact us on this for these things, right? So let's start with the very first question now. Here you will learn what you need to study exactly for this. Girish Karnad is a key author in the Indian literature. Hayavadna is a major work of Girish Karnad. कोई माइनर वर्क नहीं है, कोई लेस फेमिलियर और लेस नोन वर्क नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, राइट? सो यहाँ से आप ज़्यादा जो चीज़ इसमें पाएंगे, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हमें मेजर ऑथर्स को सबसे पहले टारगेट करना है। मेजर ऑथर्स हमारा हमेशा से हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। मेजर ऑथर्स, उनके मेजर वर्क। आर के नारायण का पता है आपको? का गाइड हो गया, वेंडर ऑफ द स्वीट्स हो गया, राइट? उनका बैचलर इंग्लिश लिटरेचर हो गया, मालगुडी डेज हो गया। उनके जितने भी ये सारे वर्क्स, जो मेन मेन वर्क्स हैं, जो मेजर मेजर वर्क्स हैं, वो चीज़ें हमें कवर करनी है। मेजर ऑथर्स के मेजर वर्क्स, वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी। देन वी कम हियर, अनदर क्वेश्चन है, ठीक है? जयंता महापात्रा, केकी अंदारूवाला, शिव के कुमार, रविंद्र कृष्णा मेहरोत्रा, दीज आर वेल नोन फिगर विद इन इंडियन लिटरेचर। ये वेल नोन फिगर्स हैं, ये कोई लेस नोन फिगर नहीं है।
ठीक है। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि शिव के कुमार का जो पीएचडी का सुपरवाइजर था, दैट वाज डेविड डिचेस। आपने सुना होगा इनका नाम, काफी एक डिफिकल्ट बुक है, डेविड डिचेस, राइट? A critical history of English literature. He was his guide. He has completed his PhD from uh, Cambridge University, right? So ये well known figures हैं whose poetry is redolent of the Orissa scene and Jagannatha temple at Puri figures quite often in it. ओडिशा और जगन्नाथा टेम्पल एट पुरी, ये सारी चीजें किसकी पोइट्री में हमें देखने को मिलती है? जयंत महापात्रा की। और ये सारे आपके मेजर ऑथर्स, मेजर पॉइंट्स हैं। आप इनके बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर भी इजीली अवेलेबल होती है, आपको वो कवर करना, ठीक है? उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खुद को पैनिक करने की नेसेसरली, बहुत ज़्यादा पढ़ने को यार हमें नहीं पता। आपको जितना पता है, जितना आपके पास कंटेंट है, सबसे पहले आपको वो कवर करना है। देन वी विल लुक इनटू अदर थिंग्स। ऑलराइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन अगेन यू विल फाइंड हियर, सॉरी, दैट वाज बैचलर्स ऑफ आर्ट, दैट वाज बैचलर्स आर्ट्स, बट इट्स इंग्लिश टीचर करके भी इनका एक वर्क है आर के नारायण का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट दे इज इंग्लिश टीचर करके, राइट? So Bachelors of Arts, the Guide, Waiting for Mahatma, Mr. Sampath, राइट? ये बड़े ही वेल नोन इनके वर्क्स हैं, और आर के नारायण पे ये आपका पूछा गया है। और थीम्स, अगर आप किसी भी वर्क का प्लॉट पढ़ते हो तो आपको उसकी थीम के बारे में इजीली आइडिया लग जाता है, राइट? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट देन यू विल से सो देयर आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट? देयर आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड देन we follow other methods and we apply different framework फॉर दो सॉर्ट ऑफ एग्जाम। अगर डिफिकल्ट है तो फिर वो सबके लिए डिफिकल्ट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके 6% कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा कि आप 120 से कम मार्क्स लेके आओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है, ठीक है? ऐसा तो किसी भी केस में नहीं होने वाला है कि आपसे 120 भी ना बनेंगे। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, मतलब 30-40 क्वेश्चंस दे आर ऑलवेज इजी टू अटेम्प्ट, ठीक है? जिसने प्रेपरेशन की है उसके लिए वो होते हैं उतने इजीली, वो कर देते हैं अटेम्प्ट, राइट? तो हमारा हमेशा जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा आपके मेजर ऑथर्स और मेजर राइटिंग्स पे होना चाहिए। Then in which novel Anita Desai, the heroine in her fifth pregnancy, leaves her husband in a mood of unease to seek peace in an island manori of Bombay? Anita Desai पे है, Fire on the Mountain, Clear Light of the Day, Where Shall We Go This Summer, Bye Bye Blackbird। ठीक है, ऑन टिप्स ये हमने आपके नेम्स याद किए हो, ठीक है? ये मेजर वर्क्स हैं, इनके बारे में बहुत बार डिस्कशन होती है नीता देसाई की, ये आपके टॉप लिस्ट पे ये इनके वर्क्स आते हैं, ठीक है? फायर ऑन द माउंटेन, क्लियर क्लियर लाइट ऑफ द डे वाज इन एमए सिलेबस में, ये टेक्स्ट था। तो ये जो मंत्र है कि मेजर ऑथर्स के मेजर राइटिंग्स, हमारा हमेशा फोकस होगा, ठीक है? देन आर के रामानुजन, यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। ऐसे क्वेश्चन के बारे में नहीं ज़्यादा आपने वरी करना है। यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस और अपना आप गेस लगा सकते हो। यू कैन जस्ट आप तुक्का लगा सकते हो यहाँ पे कि आर के रामानुजन इस फैमिली से होंगे, हिंदू श्री वैष्णवा से होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? और निज़िम एज़ेकिएल, अगर आप इनका जब भी कोई मेजर ऑथर होता है, देखो, ए के रामानुजन और निज़िम एज़ेकिएल, इन ऑथर के बारे में जो विकिपीडिया में भी आपकी एक बेसिक सी ऑटोबायोग्राफी दिया होता है, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी के डिटेल्स जो दिए होते हैं स्टार्टिंग में ही होता है, सबसे टॉप पे, वो थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ठीक है? अर्ली लाइफ हो गया, और इनका वर्क्स का सेक्शन हो गया, और टॉप पे जो सबसे पहला आपका सेक्शन होता है, वो 3 सेक्शन हमेशा पढ़ लेने चाहिए। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो वहां से आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेल हो जाती हैं, ठीक है? फिर कोई अपने बेस पे प्रिपेयर कर रहा है, और तो आप वहां से देख सकते हैं। नाउ अब आते हैं दलित लिटरेचर्स पे।
दलित लिटरेचर्स पे आप देखेंगे कि इनकी जो जो कंसेप्शन है, जो बिगिनिंग है बिल्कुल, ठीक है? कि कहाँ से ये शुरू हुआ, का बैकग्राउंड और आज के टाइम पे जो अवार्ड विनिंग्स कुछ ऑथर्स हैं, राइट? या जिनके वर्क्स जो हैं काफ़ी डिबेटेबल हैं, उन पे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कोई माइनर फिगर्स नहीं होते हैं, हमेशा मेजर फिगर्स पे आप देखें। जस्ट अगर हम दलित लिटरेचर का जो लिटरेचर उठा के देखेंगे। अ, कर्माशी आउटकास्ट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इसमें ज़्यादातर आपको ऑटोबायोग्राफीज आप देखेंगे कि ऑटोबायोग्राफीज, क्योंकि ऑटोबायोग्राफीज में इनके रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस इन्होंने डिस्कस किए गए होते हैं, एंड दिस इज यू गेट टू नो दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स एक्चुअली द दलित पीपल आर सफरिंग इन द सोसाइटी, राइट? सो अन्ना भाऊ साथे, शंकर कुमार लिम्बले, आनंद तेलतुंबे, बेबी काम्बले, ये जो आपके नाम हैं, जो क्वेश्चंस अभी तक हमसे पूछे गए हैं, ठीक है? वो आपने एक बार देख लेना है। आपने वो एक बार देख लेना है। जो अभी तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अभी तक जो हमारे पास उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, वो हमने गो थ्रू कर लेना है, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे किसी माइनर ऑथर की पूछी जाती है, उसके बारे में ज़्यादा वरी नहीं करना है, राइट? यू कैन लीव एंड स्किप दोज़ क्वेश्चंस बिकॉज़ वी हैव अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, जिनका हमें पता है कि ज़्यादा चांसेस आने वाले हैं। और ये ट्रिकी होते हैं, आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। माइनर ऑथर के डेट्स ऑफ बर्थ या उन वो कौन से रिलीजन से है या वो कौन से प्लेस से हैं, जो मेजर ऑथर्स हैं उनका बनता है, राइट? नाउ अगेन आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ये प्लेराइट्स, निज़िम ज़कील मोस्टली एक पोएट है बट प्लेराइट भी हैं, इन्होंने कुछ प्लेस भी लिखे हैं। महीश दत्तानी इज़ ऑब्वियसली वेरी फेमस प्लेराइट। आसिफ करम भॉय इज़ अ फेमस प्लेराइट। ये 2 आपके मेजर ऑथर्स हैं। सिर्फ करम भॉय भी हैं, अभी अभी लेटेस्ट रिसेंटली इन इन पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं। एक पोस्ट मॉडर्न पीरियड के ये आपके प्लेराइट हैं। तो ये जो आपके ऑथर्स हैं, इनके आपको होना चाहिए। निज़िम एज़ेकिल का डेट ऑफ बर्थ याद रखो, ठीक है? द डे ही डाइड और द ईयर ही डाइड, वो भी आपको ईयर याद होना चाहिए, ठीक है? महेश दत्तानी इज़ स्टिल अलाइव, तो इनका डेट ऑफ बर्थ भी आप याद रख सकते हैं बिकॉज़ वो आपको हेल्प करता है कि कौन से पर्टिकुलर पीरियड में दे बॉर्न, और बिकॉज़ उसका इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजी पे ऑथर की। वो आपको चीज़ें, वो थीम्स उस पीरियड के आपको उनके वर्क में भी देखने को मिलते हैं, राइट? तो जो मेजर ऑथर्स हैं उनका आपको ऑटोबायोग्राफिकल का थोड़ा-सा सेक्शन पढ़ लेना है, ठीक है? उनका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। Now we come to the second question. Again, these are the very famously known work. Kamala Das, A.K. Ramanujan. He's not, but Nizam Ezekiel is. ये 3 तो हैं। मैंने बार-बार इनके नाम को सुना है। Again, I has proved which I said कि हमें what I have said कि हमें मेजर ऑथर्स, मेजर वर्क्स पे फोकस करना है। और ऐसे वर्क्स के बारे में तो इनको तो मतलब आप भूल सकते हो कि ऐसा भी कभी क्वेश्चन पूछा गया था, टू बी ऑनेस्ट। इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। ये पूछा गया था, अरेंज द फॉलोइंग पार्टीशन बेस्ड फिल्म इन ऑर्डर टू देयर रिलीज और प्रोडक्शन, ठीक है? मत पढ़ो ऐसे क्वेश्चंस को। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द एंग्लो इंडियन ऑथर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, भाई नहीं याद होता है किसी को। ये आगे पीछे एक-एक आपके साइकिल्स में पूछे गए हैं, ठीक है? ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान ही नहीं देना है। 1-2 का याद रहता है। रोशनी नायडू का याद रहेगा, ठीक है? या हम थोड़ा-सा आइडिया लगा देंगे कि आपका हेनरी दे रोज़ियो मे बी द फर्स्ट, ठीक है? जो आपके लेट 19th सेंचुरी में थे, राइट? ये मोस्टली तो आपके वही हैं, जो लेट 19th सेंचुरी में ही इनका बर्थ है, इन 1800 और समथिंग। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा डिफरेंशिएट करना भी, ऐसा नहीं है कि कोई मॉडर्न एज का है। सारे ही आपके जो है मतलब उस दौर के हैं जिन्होंने शुरू किया लिखना एंग्लो इंडियन ऑथर्स। डिफ़िकल्ट है और इस पे कोई ऐसा नहीं होता कि सर क्या ये सबका डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना हो। यहाँ पे देखो एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, इन इनसे ऑथर के, अगर आपको रखने हैं आप रख सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा इस चीज़ पे।
मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि इन ऑथर का भी हम डेट ऑफ बर्थ पढ़ते जाएँ। आपके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा आपका दिमाग लगता है, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं दैट रिक्वायर्स योर एनर्जी जो हमें हमें करने होंगे, ठीक है? बट हाँ, जो मेरे से ऑथर हैं बिकॉज़ ये आपके आपके फाउंडेशनल फिगर्स हैं हू बिगिन दिस बिगिन राइटिंग अबाउट इंडिया तो उस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? बट अगर नहीं याद रहते हैं, डोंट वरी, स्किप देम। Who made the following statements in defense of Shantarasa? Eight rasas are like eight gods, and Shant is like their highest center. Shiva. Right? Shantarasa is about and peace and tranquility. वो जो eight rasas हैं आपके जैसे कि भारत मुनि ने उनके नाट्य शास्त्रा में right he talk about the eight rasas and then Abhinav Gupta in his commentary on Natya Shastra he introduced the ninth rasa and he said that it is supreme is of a supreme stature than all of these eight rasas. The Shant ras, right? You after these eight rasa, you elevate yourself to the ninth level. So Abhinav Gupta ne, he is a Kashmiri philosopher. He was a Kashmiri philosopher and an aesthetician who talk about the aspects of beauty. तो ये आपका इंडियन एस्थेटिक्स से एक क्वेश्चन है आप एस्थेटिक्स से ठीक है ये आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट विद इन अवर स्टडी मटेरियल तो यू सिंपली हैव टू स्टडी राइट इसमें एक ही चीज़ है ना कि हमें क्या-क्या पढ़ना है। अगर आप नंद भजना देख लो, आप तंदिन देख लो, आप भारत देख लो इसको मे बी डैंडिन और डांडिन प्रोनाउंस किया जाता है और दांदीन ही प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ नॉट द कंसर्न हियर। मेन थिंग इज़ कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है? इन सभी ने आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। दे हैव डेवलप्ड समथिंग विदिन द इंडियन दे हैव डेवलप्ड सम थियरीज़ जिसे हम इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं so they have laid the foundation of Indian literary criticism as we have the Plato in Greek we have the Plato's poetics in Greek we have Bharat Muni's Natya Shastra in India one of the ancient uh, manuscript or scriptures on the art on the dance music ठीक है उसके वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में जो बात करता है तो ये सारे आपके की फिगर्स हैं इन्होंने कुछ ना कुछ नया एक ने इसमें से ध्वनि हरि को दिया है एक ने शांत रस दिया है एक ने आपके आठ एट रसास को दिया है उनके नाट्य शास्त्र में सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स और जब ऐसा 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 कभी केस होता है कि आपके सारे मेजर ऑथर्स हैं और आपको पता नहीं है और अभी तक वो क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं यू रीड अबाउट देम यू लर्न अबाउट ऑल ऑफ देम उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा फिर वो इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है अगर कोई मेजर ऑथर है और आपको पता नहीं है उसके बारे में सर्च करो ठीक है ऑब्वियसली इसी रीजन से तो ये एग्जाम डिफिकल्ट है अदरवाइज तो फिर हर कोई आपका नेट जेआरएफ लेके बैठा हो हर कोई भी लेके बैठा है ये भी डिनाई नहीं करता लेके बैठा है बट वो लेके बैठा है आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू इट अगर आपको इस फील्ड में लिटरली आना है तभी उतना एफर्ट डालो ठीक है दिस इज नॉट द टाइम यू डोंट अफोर्ड टू वेस्ट द वेरी प्रीशियस टाइम ऑफ योर लाइफ ठीक है requires certain patience to have a stable job if you come into this field ठीक है especially for the person who come from not a good bad quality education system ठीक है अगर आप आ रहे हो अगर आपकी इनिशियल एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छे से नहीं हुई है तो आपको आगे चल के वो चीज़ बॉदर करेगी और ये भी एक वक्त है कि जहाँ पे वो चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ दलित नैरेटिव रिटन बाय पेरुमल मुरुगन ठीक है जब आप पेरूमल मुरुगन के बारे में जब भी कोई ऑथर है
किसी भी ऑथर का नाम है और उसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस में दिए गए। आप उस ऑथर के बारे में एक रिसर्च कर लो। हर एक ऑथर, जो भी पूछा गया है आपसे, वो इम्पोर्टेंट है कि आप उसके बारे में देख लो कि क्या उनका विकिपीडिया पेज है कि नहीं है। अगर विकिपीडिया पेज नहीं है, सो मीन्स द पर्सन इज़ नॉट दैट वेल नोन, ठीक है? उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो ऑथर अभी, या उतना लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, राइट? जो उसका कंट्रीब्यूशन है इज़ नॉट ऑफ दैट लार्जर एक्सटेंट, राइट? तो एक लेस नोन फिगर है, तो उनको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? Then we have the another question. Which of the following is considered to be the first Indian novel in English? इसमें से आपने कितनी ही नॉवेल्स के बारे में सुना होगा? ऑब्वियसली हमने हेमचंद्र चटर्जी की राजमोहन वाइफ विच इज द फर्स्ट इंडियन नॉवल। तो इंडियन नॉवेल्स के बारे में पूछा गया है ना, इंडियन नॉवेल्स इन इंग्लिश। तो ये हमारा एक टॉपिक बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश? इंडियन नॉवल इन इंग्लिश द मेजर टॉपिक इज द मेन कंसर्न है। तो इंडियन नॉवल इन इंग्लिश के बारे में पढ़ो, ठीक है? तो बोला सर बहुत सारी चीजें पढ़ने की, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट गेट एक्सेस टू द स्टडी मटेरियल, द क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड मेंटरशिप एंड गेट योर नेट क्लियर। आपको नेट क्लियर करना है। अभी आपका मेन जो कंसर्न होना चाहिए वो है कि मुझे अपना नेट एग्जाम क्रैक करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स कम्स लेटर। कितना जानना है, आगे पीएचडी करनी है, फिर आपको किसी भी इंडियन नॉवल इन इंग्लिश के बारे में बहुत जानना है, अपनी आप इस टॉपिक में पीएचडी कर लो, राइट? बट अभी मेन टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करो थ्रू अवर स्टडी मटेरियल एंड क्लासेस एंड गेट योर नेट जेआरएफ क्लियर। आई डिड, बिकॉज राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी, तो उतना वक्त नहीं लग पाता रेगुलरली एक वीडियो बनाने में, राइट? बट whenever I find that it is important, I have to make a video, I come and I make one. Who among the following women writers wrote the first female Dalit autobiography? Jamila Rege, Rumila Pawar, Shantabai, Krishna Ji Kamble, Meena Kandasamy. Now, Dalit literature or the major autobiography by the female authors, Dalit literature, वो हमारा यहाँ पे मेजर एक तो वो इसका मेन फोकस है। तो आपने हर क्वेश्चन में एक मेन फोकस देखना है कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? अगर तो हम दलित लिटरेचर के बारे में ही पढ़ेंगे, उसमें आपकी ऑटोबायोग्राफीज भी होंगी, प्लेज भी होंगे, पोइट्रीज भी होंगी। तो आपके जो मेजर मेजर जो होते हैं, या तो वो अवॉर्डेड होते हैं, ठीक है, या दे आर वेल नोन फिगर्स, उनको हमने हमेशा कवर करना है। कि मेजर ऑथर्स, मेजर राइटिंग का जो फॉर्मूला है, ये आपने फॉलो करना है इन प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन लिटरेचर सेक्शन। और हर एक सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैरामीटर, ठीक है? डिलिंक्वेंट चाचा, आई नेवर heard of this. Tales from Firozshah Bagh by Rohinton Mystery, you know. Pathowin Among the Cows, A Thousand Faces of Night, Rukun Advani, Ita Hariharan, Ved Prakash Mehta, less known authors, ठीक है? अगर आप किसी एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, मान लो आप दिल्ली से पढ़े हो, आप जेएनयू से पढ़े हो, आपने शायद इनके बारे में सुना, कि इनके बारे में डिस्कशन हो, बारे में एग्जाम्पल दिए जाते हों, या कहीं रेफरेंसेस होंगे, या कभी कभार इंस्टीट्यूट में भी आए होंगे, ठीक है? तो जानना इजी है। बट ऐसे जब इंडियन लिटरेचर में जब बात होती है तो वहाँ पे हम इन्हें ज़्यादा नहीं देखते, हमने इनके बारे में सुना ही नहीं है। हमने सुना है आर के नारायण के, मुल्क राज आनंद के बारे में, राजा राव के बारे में, ठीक है, तुरुदत्त के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रोहिंटन मिस्ट्री इज द पर्सन, he has written something that uh, work which talks about the emergency period, right? The guy is from the Parsi family, getting the novel because ये काफ़ी टाइम से रिविजन नहीं किया है,
सो दैट इज द थिंग। ठीक है, सो रोहिंटन मिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, टेल्स फ्रॉम फिरोशा भाग इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना। ठीक है, इनके बारे में जो ऐसे वर्क्स होते हैं, एक गूगल पे सर्च कर लिया, इनके डेट्स तो याद नहीं करना है, ये तो फॉर श्योर है, इनके डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये कनेक्शन बस याद कर लेना है कि कौन से ऑथर ने कौन सा वर्क ये लिखा। इतना कनेक्शन नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, देन हियर अगेन क्रोनोलॉजी, आर्किन राइन्स के वर्क हैं, तो ये तो आपको टिप्स पे याद होने ही चाहिए, स्पेशली या द इंग्लिश टीचर, हियर इट इज द गाइड, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो जो मैंने कहा कि मेजर ऑथर्स और उनके मेजर वर्क, ये आपका फोकस होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, और एज आई सेड, प्रिपेयर कर रहे हो, you deserve to have the right and the quality content that can get you your net GRF. Right? I'll see you in the next video where we will discuss about the other units, literary theory, literary criticism, American literature, right? और linguistics, research methods. हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, British literature, everything, right? World literature. So stay connected. We'll meet you in the next video, guys. Start preparing. अब हमारे पास समय नहीं है, एंड एज ऑलवेज सेड कि जेआरएफ हमारा हमेशा टारगेट होना चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।